میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے. آئیے خدا کے کلام کو سنیں گے. خدا کے کلام میں سے آج جو میں سرمن دینے جا رہا ہوں پالم سنڈے کی سروس میں، گریٹ گاڈ اینڈ گریٹ کنگ، خدائے عظیم اور شاہ عظیم، یہ آج کا میسج ہوگا. تو پلیز غور سے اس کو سنیے. خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے زبور 95 اور اس کی تیسری آیت. خدا کے کلام میں سے 95 سامس ہے، زبور ہے، اور اس کی تیسری آیت. کیونکہ خداون خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے. اور ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خداون کے کلام میں سے 21 باب اور اس کی 5ویں آیت. خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے. سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی. اور بھیڑ جو اس کے آگے پیچھے جاتی تھی، آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی کہ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جماعت بولے آمین. شکریہ صاحب، بیٹھ جائیں. خدا کے کلام میں سے آج جو تعلیم دینے جا رہا ہوں، خدا کے کلام میں سے خدائے عظیم اور شاہ عظیم کے تعلق سے. تو پلیز اسے غور سے نوش فرمائیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. آج آپ اس عظیم دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. خدا جو ہے وہ عظیم اور شاہ عظیم ہے، اور اسی طرح اس کا بیٹا بھی خدائے عظیم اور شاہ عظیم ہے. اس کا مطلب ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یعنی خدا جو ہے یہوہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ شاہ عظیم، دنیا کے اندر بے شمار خدا کہلاتے ہیں، دنیا کے معبود کہلاتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا جو بادشاہ ہے، جو کائنات کو سنبھالتا ہے، کریٹر ہے، وہ بولیے یہوہ خدا ہے. ہلیلویہ. وہ خدائے ثالوث جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، باپ بیٹا روح قدس. یہ دنیا کے اندر ثابت ہوا ہے کہ کائنات کا جو بادشاہ ہے، شاہ عظیم ہے. وہ بولیے کون ہے؟ خدا کا بیٹا اور خدائے یہوہ خدا. یہوہ خدا جو ہے وہ خدائے عظیم ہے. داؤد کہتا ہے داؤد یہاں پر لکھ رہا ہے خداوند کے کلام کے اندر، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور وہ شاہ عظیم ہے. یعنی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. خدا کائنات کا بنانے والا انسانوں سے پیار کرتا ہے، انتہا محبت کرتا ہے، اور وہ کائنات کے اندر بادشاہ ہے، بادشاہی کرتا ہے. دنیا کی بادشاہیاں جو ہے وہ خدا ہی لوگوں کو دیتا ہے. اور خدا جو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہوہ خدا جو ہمارا شاہ عظیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے خدا، وہ دنیا کے اندر بادشاہوں کو اختیار دیتا ہے، اور وہی ان اختیارات کو واپس لے سکتا ہے، کیونکہ یہ شاہ عظیم ہے، خدائے عظیم ہے. اس لیے ہم اس کی پرستش کرتے، اس کی ستائش کرتے، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ تمام قوموں میں، تمام دنیا میں کیا بولیے شاہ عظیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر واحد ایک قوم بنی اسرائیل تھی جسے خدا نے چنا، اور خدا ان کا بادشاہ ہے. تو خدا ان پر بادشاہی کرتا. دنیا کے لوگ جو تھے وہ جب قبیلے بنتے، پھر سردار بن جاتے، اور پھر وہ ان پر حکومت کرتے. دنیا کے بادشاہ اپنی رعایا پر حکومت کرتے، اور قوم بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ نہیں تھا، صرف ان کا یہوہ خدا ہی ان پر بادشاہ تھا. مگر قوم نے کیا کہا؟ ہمیں بادشاہ چاہیے، دنیا کے اندر سے بادشاہ، لوگوں میں سے بادشاہ. لہذا لکھا سیموئیل نبی بھی ناراض ہوا کہ خدا ان کا بادشاہ ہے، تو انہوں نے خدا کو رد کر دیا اور کہنے لگے ہمیں دنیا میں بادشاہ چاہیے، دنیا کا بادشاہ. تو خدا نے
फिर साउल बादशाह उनको दे दिया उनके करे। हालांकि खुदा नाराज हुआ। खुदा ने कहा मैं तुम्हारा शाह अजीम बादशाह, कायनात का बनाने वाला मैं तुम्हारा बादशाह का बादशाह हूँ, तो मुझे रिजेक्ट कर रहे हो और दुनिया का बादशाह मान रहे हो, चलो मैं दे देता हूँ अब। लेकिन खुदा ने कहा कि वो बादशाह जो होगा दुनिया में दौलत जमा करेगा, तुम्हारे बच्चे उच्चे नौकर होंगे, वो दुनिया में दौलत जमा करेगा। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दुनिया के अंदर वो साउल बादशाह तो दे दिया गया, मगर वो खुदा के साथ ना चला, खुदा के साथ ना चला। वो उसने खुदा को रद्द किया, खुदा को छोड़ दिया। और फिर इसी तरह बनी इसराइल के जो बादशाह है वो 42 बादशाह टोटल आए, 42 बादशाह। उनमें से चंद ही बादशाह जो खुदावंद के साथ चलते रहे, जैसे सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह, 2-3 और बादशाह। मगर बनी इसराइल के तमाम बादशाह जो थे वो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो बदकार बादशाह, गुनाहगार बादशाह, बदकारी करते थे, नापाकी के अंदर जिंदगी बसर करते थे। मगर खुदा ने जो बादशाह दुनिया में भेजना था वो साउल बादशाह को नहीं भेजना था। खुदा ने अगर दुनिया में कोई बादशाह भेजना था तो वो उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह था। हालेलुया। उसने दुनिया के अंदर भेजना था जो बादशाह, उसने अपने बेटे को भेजना था, मगर उन्होंने पहले ही दुनियादारी का बादशाह मांग लिया, लिहाजा खुदा ने फिर दे दिया। मगर वो बादशाह राष्ट्रवाद बादशाह नहीं थे, दुनियादार बादशाह थे। गुनाह के अंदर पड़ गए, कौम को भी उन्होंने गुनाह के अंदर डाला। और हालांकि लिखा है बनी इसराइल के अंदर जब खुदा की हुजूरी आती थी तो लिखा है कि वो खैमा के ऊपर और लिखा है कि अहद के संदूक के ऊपर खुदा अपनी हुजूरी देता। बादशाह का बादशाह जो था खुदा, यहोवा खुदा क्या करता था, उन पर हुकूमत करता था। उसका लिखा है कि तख्त जहां पर लगता था, लिखा है अहद के संदूक के ऊपर लगता था, यानी हैकल के अंदर अहद का संदूक जो था वहां पर खुदा का तख्त लगता था। और खुदा का तख्त जब लगता तो फिर काहिन जो होते थे, पाक लोग, लावी जो थे, अपने कंधों पर लेकर चलते थे और खुदा का तख्त उस अहद के संदूक पर लगता था। और लिखे गाने वाले आगे आगे, यहोवा खुदा की जब आमद आती थी, खुदा की हुजूरी जब होती थी, लिखा गाने वाले आगे आगे होते थे और बजाने वाले पीछे पीछे। और लिखा है कौम बनी इसराइल की जवान बेटियां गफ लेकर बजाती थी और कौम नारे लगाती थी, खुदावंद की हमदो सुना करती थी। हालेलुया। कि हमारा खुदा हमारे दरमियान में है, तो कौमें, इर्द गिर्द की कौमें जो थी वो डर जाती थी, खौफ खाती थी कि इनका खुदा इनके साथ है। बोलिए खुदा इनके साथ है। यहोवा खुदा वो जब हमद उठाते थे, प्रोसेस करते थे, तो वो लोग गैर कौमें डर जाती थी कि इनका बादशाह इनके दरमियान में है। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि जब वो सीरी में गए तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब दाऊद बादशाह बना तो लिखा दाऊद जो था वो अहद का संदूक जब लेकर आया तो लिखा है कि वो गिरने लगा, ये नहीं था, लिखा है वहां पर उसकी डेथ हो गई, वो ढलान वाली जगह। तो लिखा है कि वो गाड़ी पर लेकर आ रहा था तो लिखा है कि फौरन वो सिरक गया अहद का संदूक, वहां खुदा की हुजूरी होती थी। एक शख्स ने थामने की कोशिश की, लिखा उसकी डेथ होगी। और दाऊद घबरा गया कि ये कैसे होगा। तो फिर लिखा है कि वो वहां पर काहिन था, वो अपने घर ले गया और उसने 3 महीने खुदावंद की प्रोसेस की, अपने घर में रखा। उसके घर के अंदर बहुत बरकत नाज़िल हुई। लेकिन उसे दाऊद को सही तालीम का नहीं पता था कि कैसे अहद का संदूक, जहां पर खुदा की हुजूरी होती है, खुदा का तख्त लगता है, बादशाह का बादशाह जो वहां पर तख्त नशीं होता है, तो उसे तालीम नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। फिर दाऊद ने सीखा खुदा के कलाम को। हमें आज इतनी समझ है कि अहद के संदूक की, और उसे नहीं थी। फिर उसने सीखी, उसे पता चला कि खुदा का जो अहद का संदूक है वो लावी जो है कंधों पर उठाकर लाते थे। और जब उसे पता चला तो फिर वो लावी काहिनों को उसने बुलाया। और लावी जब उस लिखा है कि अहद के संदूक को अपने लिखे इलाका के अंदर लेकर आया, तो फिर दाऊद खुदा का तख्त वहां पर लग गया। और बनी इसराइल के लोग गाने लगे, खुदावंद की हमद करने लगे, कह रहे थे। तो दाऊद के जब इलाका के अंदर वो अहद का संदूक आया तो फिर दाऊद ने नाचना शुरू किया। हालेलुया। दाऊद ने कहा मेरा खुदा मेरे घर आया है। आमीन। यानी खुदा की हुजूरी
खुदावन मेरे घर के अंदर आया, तो फिर उसने नाचना शुरू कर दिया, खुदावन की हमद करने लगा मेरा बादशाह मेरे घर के अंदर आया है, बादशाहों का बादशाह। लिहाजा खुदावन के कलाम में लिखा है यहोवा खुदा जो शाह अजीम है वो बादशाहों का बादशाह। और फिर लिखा है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा वो भी बादशाहों का बादशाह, इसलिए क्योंकि कौम ने दुनिया का बादशाह मांगा, मगर खुदा तो अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए भेजना चाहता था। इसलिए जब कौम ने उस बादशाह को रद्द कर दिया, असीरी के अंदर चले गए, गुलामी के अंदर चले गए, दुख पा रहे थे, तो फिर खुदा ने नबी जिक्रिया नबी की बाबत कलाम किया। जिक्रिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है बिनते सयून खूब ललकार दे तेरा बादशाह आता है। हालेलुया। ये क्राइस्ट के ताल्लुक से सयून, क्योंकि यरूशलेम का जो शहर था वो सयून के ऊपर, सयून पहाड़ के ऊपर बसा हुआ था, इसलिए इस्राएल को सयूनी कहते थे। और खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है कि उसने जिक्रिया नबी ने नबूवत की। क्या नबूवत की? ए डॉक्टर यरूशलेम खूब ललकार दे तेरा बादशाह क्या है? आता है। वो गधे पर सवार है। वो बादशाह क्या है? सुनिए, गधे पर सवार। और फिर लिखा है कि वो हलीम है, फिर लिखा है नजात उसके हाथ में है, और लिखा है कि वो गधे पर बल्कि जुबान लादू पर सवार है। ये बादशाह की निशानियां बताई गई। वो बादशाह दुनिया के अंदर जो आएगा, दुनिया के बादशाह जो थे वो रथों पर, गाड़ियों पर, बैलों पर आते। दुनिया के बादशाह जो थे वो हाथियों के ऊपर सवार होकर आते, घोड़े चूज करते, वो घोड़ों पर आते। और लिखा है कि आज दुनिया के अंदर जो बादशाह आते हैं वो भी जहाजों के अंदर, हेलीकॉप्टरों के अंदर, बड़ी बड़ी मर्सी गाड़ियों के अंदर दुनिया के बादशाह आते। मगर वो जो बादशाह है, जो जिसके बारे में कहा गया, वो क्या होगा? लिखा है वो बादशाह होगा। और क्या होगा? हलीम होगा। लिखा है कि निजात उसके हाथ में होगी। और लिखा है कि वो गधे पर सवार होगा। तो लिखा है कि जब यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह गधे पर सवार हुए, लिखा है जब गधे पर सवार हुए तो कौन बनी इस्राएल को ये नबूवत का पता था कि जो बादशाह आने वाला है वो जब आएगा तो वो गधे पर सवार होगा। वो घोड़े को नहीं यूज करेगा, वो गाड़ियों को यूज नहीं करेगा, वो घोड़े पर नहीं आएगा। अगर घोड़े पर आता, इसका मतलब वो जंग करने के लिए आ रहा है। लिहाजा यीशु मसीह ने पहले कह दिया कि अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे लोग लड़ते, मेरे लोग जंग करते, लड़ते। वो तो सुलह का बादशाह बन के आया। हालेलुया, हालेलुया। वो सुलह का बादशाह। लिखे बिनते सयून खूब ललकार देख तेरा बादशाह आता है। वो सादिक है, निजात उसके हाथ में है। और लिखा है वो हलीम है, दिल का फरोतन है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो गधे के बच्चा पर सवार है। गधे पर सवार होना, ये भाई दुनिया के जो बादशाह है वो तो भाई गाड़ियों में छुप कर आते हैं, मगर ये आया बादशाह गधे पर सवार जब हुआ तो लिखा नारे गूंजना शुरू हुए इस्राएल के अंदर। कौम बनी इस्राएल के अंदर नारे ये उठे कि बादशाह जो आने वाला है वो आ गया है। हालेलुया। वो उन्होंने नारे लगाए, क्या? होशाना। बोलिए, क्या नारा लगा? होशाना। उन्होंने नारे लगाए। होशाना का क्या मतलब है? होशाना का मतलब है, इसे ग्रीक लैंग्वेज के अंदर कहते हैं होशिना, इंग्लिश के अंदर होसेना, और फिर उर्दू के अंदर होशाना कहते हैं। और ये होशाना का मतलब है ए खुदा हमें बचा, हमें खुशहाली दे। आमीन। लिहाजा होशाना का मतलब क्या है? ए खुदा हमें बचा, हमें खुशहाली बख्शे, खुशहाली बख्शे, हमें बचा ले। लिहाजा यीशु मसीह के बारे में लिखा है जब वो बादशाह आएगा तो बादशाह डर जाएंगे। आमीन। दुनिया के बादशाह डर जाएंगे। हालांकि लिखा है यीशु मसीह जब पैदा ही हुआ तो वो बादशाह पैदा हुआ। लिखा है मजूसी आए, मजूसियों ने क्या कहा कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो, बोलिए, कहाँ है? तो बादशाह डर गया। क्या करने लगा? बादशाह आ गया बादशाह। इसी तरह लिखा है यीशु मसीह ने आज के दिन के अंदर, लिखा है जो आज का दिन पॉम संडे का हम मना रहे हैं, आज के दिन यीशु मसीह ने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। हालांकि वो बादशाह तो जब पैदा ही हुआ तो बादशाहों का बादशाह था। हालेलुया। और जब आज के दिन यीशु मसीह, लिखा है बैतफिगा से लेकर आया और यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ तो लिखा है कि
उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं बादशाह का बादशाह हूँ, गधे पर बैठा। और जब कौम बनी इसराइल ने गधे पर उसे देखा तो फिर नारे गूंजना शुरू हुए। क्या कहने लगे? होशाना, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद की तरफ से आता है। यानी ये दुनिया का बादशाह नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। हालेलुया, जिसका खुदा ने वादा किया। आमीन। लिहाजा कौम बनी इसराइल ने नारे लगाना शुरू किए, होशाना। आइए जरा होशाना के नारे तो लगाए फिर आगे चलो। हाँ जी भाइयों में से पहले बोलेंगे 1 2 3 3 पे 3 पे 3 पे 3 पे 1 2 3 कम है ज्यादा जरा 1 2 3 कम है, खड़े होके लाओ, सही लगा। प्रेज गॉड। भाई उधर तो भाई बचाने वाला आ गया है, निजात देने वाला, बादशाह का बादशाह। आसमानों पर खुशी मनाई जा रही, यरूशलेम गूंज उठा, बुलंद आवाजों से लहरें उठ गई, बोलना शुरू हुए, लोग बुलंद आवाज से नारे लगाने शुरू किए। हाँ जी, पता चलना चाहिए मोहल्ले को कि आज पॉम संडे है। 1 2 3 होशाना, दोबारा से होशाना। आइए तालियां बजाइए खुदावंद के जलाल के लिए। अभी टेस्ट हो रहा है आपका, बैठ जाए, शुक्रिया। हाँ जी आपकी बारी, आप में से आप बैठ के बजाएंगे लेकिन आवाज तेज नहीं तो बोले। हाँ जी 1 2 3 आपने नहीं बोलना, आपकी बारी आएगी। कम है आवाज, भाइयों से भी आते हो, कम है आवाज। हाँ जी 1 2 3 अच्छा ठीक हो गया। हाँ जी अभी आपकी बारी है, टेस्ट होने लगा है। बुलंद आवाज आनी चाहिए भाइयों और बहनों की तरफ से ज्यादा, ठीक है। 1 2 3 पता नहीं चला, खड़ा कर दूंगा एक दफा और चांस है। 1 2 3 आइए जोरदार तालियां बजाइए यीशु के लिए। यीशु का बादशाह खूब लड़कर देख तेरा बादशाह आता है। हालेलुया। वो गधे पर सवार हुआ, वो जंग नहीं करने आया बल्कि सुलह दुनिया के अंदर लाने के लिए आया। आमीन। लिहाजा वो बादशाह का बादशाह, उन्होंने ये नारा लगाया, होशाना, हमें बचा। मगर आज हम ये नारा नहीं लगाते, हम क्या कौन सा नारा लगाते हैं? हालेलुया। क्या नारा लगाते हैं? बोलिए बोलिए, क्या नारा लगाते हैं? कौम बनी इसराइल को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया, उनको पता था, इसलिए बचाने के लिए, दुनिया के गुनाह उठाने के लिए, उनको निजात देने के लिए आया। इसलिए उन्होंने बादशाह माना। हम इसलिए बादशाह मनाते हैं कि हमने निजात पा ली है, हम बचा लिए गए हैं। आमीन। हम क्या हुए हैं? बचा लिए गए हैं। यीशु मसीह ने हमें बचा लिया, लहू बहाकर, जान देकर हमें बचा लिया। लिहाजा होशाना का नारा बदलकर हालेलुया में बदल गया। हालेलुया। होशाना का जो नारा है वो किस में बदल गया? बोलिए हालेलुया का मतलब खुदावंद तेरा शुक्र हो। प्रेज दी लॉर्ड। फरिश्ते भी गाते हैं, हालेलुया कहते हैं। हम भी आसमानों पर जब जाएंगे तो हालेलुया का नारा लगाएंगे। अब नारा बदलकर होशाना से क्या हुआ? बोलिए हालेलुया। तो जरा हालेलुया तो लगाए जरा। 1 2 3 एक दफा और जरा बुलंद आवाज से। 1 अभी नहीं, 1 2 3 आपकी आवाज है। 1 2 3 1 2 3 सभी को कहिए हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल की जोरदार तारीफ है। प्रेज गॉड। हालेलुया। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखकर यहोवा खुदा जो शाह अजीम है, शाह खुदा है, वो पानियों पर तख्त लगाता था अपना। हाँ हालेलुया। लिखा उसकी राहें समुद्रों में है, वो तख्तशी लिखे खुदावंद के कलाम में लिखा है। सुनिए, लिखा कि पानी टाल दे, समुद्र की लहरें जो वे टाल दे, तालियां बजाए, दरख्त टाल दे, दरख्त तालियां बजाए। हालेलुया। कायनात की हर चीज तालियां बजाती यहोवा खुदा की, खुदा के लिए। और जब यीशु मसीह बादशाह पैदा हुआ, दुनिया में बादशाह आया, तो लिखा कौम बनी इसराइल ने उसे अपना बादशाह माना। आमीन। लिहाजा यहोवा खुदा तो पानियों पर तख्त लगाता था, मगर यीशु मसीह खुदा का बेटा जो सलीब के ऊपर चढ़ गया, लिखा है कि वो नारे लगा रहे थे होशाना के, यानी हमें बचा। लिहाजा पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ गया, अपना तख्त सलीब पर लगाया, पूरी दुनिया को उसने बचा लिया। हालेलुया। उसने अपना तख्त सलीब के जरिए से पूरी दुनिया को बचा लिया। और फिर डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ परदोष भी होगा। हालेलुया।
वो तख्तशी है, लिहाजा उसकी निशानियां ये बताई गई थी। वो क्या होगा? खुदावंद के कलाम में लिखा है, ए बिन्ते सिय्योन खूब ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो क्या है? बोलिए। हलीम है। यीशु मसीह ने कहा मैं दिल का हलीम हूँ, आमीन, मुझसे हलीमी सीखो। फिर लिखा है वो निजात उसके हाथ में होगी। यीशु मसीह निजात दहिंदा जब पैदा ही हुआ तो लिखा है खुदावंद के कलाम में, मुकस्सम मरियम से फरिश्ते ने क्या कहा कि यीशु मसीह पैदा होगा, तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु, जो अपने लोगों को क्या कर देगा? बोलिए, निजात देगा, आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने निजात मेरे हाथ में होगी। वो जो बादशाह पैदा होगा, ज़िक्रिया ने कहा निजात उसके हाथ में होगी। वो हलीम है, दिल का फरोतन है, और फिर लिखा गधे पर सवार है। गधे पर इसलिए सवार हुआ कि वो जंग नहीं लड़ने आया, वो तो दुनिया के अंदर सुलह लाने के लिए आया, अपनी जान देने के लिए आया, कुर्बान होने के लिए आया। लिहाजा यीशु मसीह ने आज के दिन के अंदर होशाना यीशु मसीह के बारे में नारे लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर किया। जैसे यहोवा खुदा बादशाह है, इसी तरह क्राइस्ट भी, उसका बेटा भी क्या है? बादशाहों का बादशाह है। अब तो वो गधी पर सवार होकर आया, मगर लिखे अब जब दोबारा आएगा तो सफेद घोड़े पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि वो 666 को मारने के लिए आएगा, एंटी क्राइस्ट के साथ जंग लड़ने के लिए आएगा, तो घोड़े पर, सफेद घोड़े पर। हालेलुया। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए लिखा है जब वो आएगा तो उसकी रान के ऊपर लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह है, कायनात का बादशाह। अब गधी पर सवार होकर आया, मगर अब जब आएगा तो वो घोड़े पर आएगा, रथों पर आएगा, दुश्मन को मारेगा और अपनी बादशाही को कायम करेगा। लेकिन 1000 साल बादशाही के अंदर वो बादशाह होगा, दुनिया के अंदर कोई बादशाही नहीं होगी, सिर्फ क्राइस्ट की बादशाही होगी। और फिर अब्दियत के अंदर भी वो बादशाह का बादशाह हमारे लिए होगा। 1000 साल बादशाही के अंदर आज बनी इस्राएल ने यीशु मसीह को रद्द किया, कबूल नहीं कर रही, इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रही, होशाना के नारे नहीं लगा रही। बनी इस्राएल के लोग यीशु को नहीं कबूल करते, मगर क्या 1000 साल बादशाही के अंदर वो भी होशाना के नारे लगाएंगे, यानी है खुदा हमें बचा ले, कहेंगी, होशाना के नारे लगाएंगी, तो देन उस वक्त बनी इस्राएल को भी बचा लिया जाएगा। आज हम लोग बच चुके हैं, हमें आज के दिन होशाना के नारे लगाने हैं, और फिर हालेलुया के नारे, खुदावंद की तारीफ करनी, खुदावंद की कोशिश करनी। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अच्छा, बस आखिरी बात करूंगा, टाइम काफी हो गया। आप में से कोई नारा लगा सकता है? कोई नारा लगाए, आप में से, भाइयों में से कोई नारा लगा सकते हैं जो दिल में है। हालेलुया, शाबाश, 3 लोगों ने लगाया है। कोई और? जय, शाबाश। हाँ जी, आप में से कोई नारा लगा सकता है? लगाए, कोई भी लगाए, कोई लगाए। जय। आप में से कोई नारा लगाए? जय। जरा कम नारा लगाया आपने, अच्छा, मैं कहूँगा बादशाह का बादशाह, आप क्या कहेंगे? यीशु बा। ठीक है, ये नारा याद रहेगा आपको जो आगे। हाँ जी, पता चल लगे बच्चों को। शुक्रिया। हाँ जी, मैं जो कहूँगा ना, मेरे पीछे आप मैं कहूँगा बादशाह का बादशाह, आप कहेंगे यीशु बादशाह। मैं कहूँगा बादलों पर वो आने वाला है। चलिए, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, वो बादलों पर आने वाला, वो बादलों पर आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां उस बादशाह के लिए, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो बादशाह दुनिया के अंदर निजात देने के लिए आया, हमने उसने निजात दी, इसलिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी, कोशिश करनी। आइए अपने सर को झुकाइए, आंखें बंद कीजिए।